Hello, good morning all. Welcome to this e-class on the topic bioinorganic chemistry. So in the past lecture, we went through the classification of biologically important elements as essential elements and trace elements. Today we are going to discuss the metal porphyrins. So, one of the most important ways in which metal ions are involved in complexes with a type of macrocyclic ligands are called porphyrins. So, porphyrins are derivatives of porphyrins and they differ in the arrangement of substituents around the periphery. So, the porphyrin molecules consist of macrocyclic pyrrole systems with conjugated double bond and various groups attached to a perimeter. Now, porphyrin group can lose two protons to form two dianion, which form the porphyrin complex with metal ions known as metalloporphyrins. So, few most important metalloporphyrins include heme and chlorophyll. हाँ ये दो एग्जांपल्स हैं इनके. हीम जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, द इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन protein. Now we will discuss the structure and function of myoglobin and hemoglobin. तो आपने जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, उसमें धातु जो है मुख्य रूप से जो है पोरफायरिन लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है. और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पोरफायरिन लिगेंड के बाहरी हाइड्रोजन के विभिन्न समूहों द्वारा विस्थापित होने के कारण भिन्न होते हैं. आप जो जैसे पोरफायरिन की स्ट्रक्चर आपको आइडिया है कि पोरफायरिन लिगेंड जो हैं वो चार पायरोल रिंग्स के जो कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड हैं है ना, उनके द्वारा जुड़ने से बनते हैं. ठीक है. तो ये जो अब क्या है कि इनके चारों नाइट्रोजन के बीच में एक कैविटी बनती है जिसका कि जो व्यास है वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है. तो इस प्रकार केवल वे ही आयन जिनका आकार इस कैविटी से कम होता है कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ना. वही आयन जो है इसमें फिट हो जाएंगे. तो पोरफायरिन लिगेंड जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई दोनों हाइड्रोजन्स को त्याग करके एक डाई एनायन बनाता है जो कि धातु के साथ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. और क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कुछ एग्जाम्पल हैं मेटल पोरफायरिन के. तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन करियर हैं. तो यहाँ पर हम जो है वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन हायर एनिमल्स जैसे कि मैमल्स हैं. सो हीमोग्लोबिन जो है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स सोर्स क्या है, लंग, स्किन एंड गिल्स, है ना, टू द साइट ऑफ इट्स यूज इनसाइड द मसल सेल वेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू मायोग्लोबिन फॉर यूज इन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस. Now, myoglobin जो है it is a monomeric protein with molecular weight 17,000 having a single polypeptide chain that is not conductive of self association. Okay. On the other hand, hemoglobin जो है it is a tetrameric protein with the molecular weight of approximate 64,500 consisting of 2 alpha and 2 beta peptide chains which are interlinked through hydrogen bonded interactions. Though due to these salt bridges interactions, the peptide chain in deoxyhemoglobin is constrained, and X-ray studies they have shown the disappearance of these salt bridges on oxygenation. ये एक बहुत बड़ा proof है. Now the active site of both hemoglobin and myoglobin contains the heme group in which जो आपका फेरस आयन है इट इज़ इक्विटोरियली कोऑर्डिनेटेड बाय द 4 pyrrole nitrogen atoms of protoporphyrin which has been shown here on the figure. So the fifth position is coordinated by the imidazole nitrogen atom of histidine of the protein chain, that is globin protein, and the sixth position is vacant. But it is this vacant position is hydrophobically shielded by the protein chain. Here you can see on the next figure
here. Okay, so as a result, only non-polar neutral molecules such as oxygen, carbon dioxide, they can bind to the sixth position. Now, due to which the iron is approximately 0.75 angstrom above the level of porphyrin, as it has been shown here on the screen. Thus, in the deoxygenated hemoglobin, ferrous iron forms high spin complex with 4 unpaired electrons and square pyramidal geometry. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन यूनिट, है ना, in A part, and the B part of this figure you can see one of the 4 subunits of hemoglobin position of heme group between the two hexacle of hydrophobic globin protein. तो जितने भी हायर एनिमल जैसे कि मैमल्स का है, मैमल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो हैं वो ऑक्सीजन के स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. यू ऑल नो दैट जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है, और ये जो यह ऑक्सीजन को इसके सोर्स जो कि लंग्स हैं, स्किन है, गिल्स है, उससे टिश्यूज़ तक ले जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन को किसको ट्रांसफ़र कर देगा, मायोग्लोबिन को. यहाँ पे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आ जाती है. तो सेल मेटाबॉलिज्म की वेरियस प्रोसेसेस में आवश्यकता होने पे मायोग्लोबिन जो है उसको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाती है. ठीक है, अब मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये एक जो है प्रोटीन है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट जो है 17,000 है, जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको कि हम ग्लोबिन चेन कहते हैं पाई जाती है, और इसमें सेल्फ एसोसिएशन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है. जबकि दूसरी ओर हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 64,500, और इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पेप्टाइड चेन जो हैं एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाते हुए जुड़ी हुई रहती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हियर ऑन द स्क्रीन. तो हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की बहुत उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है ना. तो प्राप्त अणु को ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन निकालने के बाद, है ना, जो बचा हुआ अणु है जिसको कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में पेप्टाइड चेन जो है वो स्ट्रेनलेस होती है. तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ही जो एक्टिव सेंटर है हीम है, जिसमें कि फेरस आयन जो है वो 4 पायरोल नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है ना. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, अब जो है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में जब आयरन एक हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है. Here you can see here that आयरन एटम को हमने पोरफायरिन वलय के तल के लगभग 0.75 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस ऊपर पाया जाता है. तो हीमोग्लोबिन में है जो ग्लोबिन की संरचना है एक तरह से 8 हेक्सिकल भागों की बनी होती है, और 2 भागों के मध्य में हीम ग्रुप उपस्थित रहता है ना. बी पार्ट में आप देख ही रहे हैं इस फिगर के. तो अब ग्लोबिन प्रोटीन के जो 2 प्रकार के समूह होते हैं, है ना, पोलर एंड नॉन पोलर, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक होता है, और प्रोटीन का जो ये नॉन पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ, ठीक है ना, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है, जो कि हीम ग्रुप को घेरे रखता है. ठीक है, अब नाउ हियर वी कम हियर. तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन जो है इट इनफैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ 8 हेक्सिकल पार्ट, and heme group is present between the 2 hexagonal part which you could see in the figure 7.2b part. So globin protein जो है it consists of 2 parts, polar and non-polar. Non-polar is hydrophobic and the polar end of the protein is projected outside and the non-polar inside surrounding the heme group. Now what happens is that in the absence of globin, the 6th position is coordinated by polar molecule like water and iron too. So heme is irreversibly oxidized by oxygen of air to ferric hematine.
ना, iron 3 hematine. This is because of its residual positive charge. It remains reluctant to bind uncharged ligand such as oxygen, but it readily binds to charged ligand such as cyanide, sulfide, hydroxyl, which inhibits the oxygenation process. So oxygen bind to iron 2 heme at the vacant 6 position, and the resulting octahedral field is strong enough to transform high spin iron 2 to low spin iron 3 with the radius 0.75 angstrom. So as a result of that, iron 2 radius is contracted by kitna 0.17 angstrom, and iron 2 is in the active site of oxygenated hemoglobin, and oxygenated myoglobin जो है it moves towards the porphyrin plane and ultimately sits in the porphyrin cavity as shown here in the next figure. You can see here. So the monovalent of the movement of iron 2 जो है it causes the coordinated histidine to move towards the porphyrin plane, and this brings about a conformational change throughout the peptide chain amounting to a rupture of some or all the salt bridges है ना interactions. So the constrained hemoglobin tetramer then relaxes by exposing the 6th position of the remaining 3 units of the heme groups to oxygenation, and this phenomenon is known as cooperative interaction. Now the oxygenation of hemoglobin is autocatalytic due to this cooperative interaction, but such effort is absent in myoglobin due to its monomeric structure. So the overall rate of binding of ligand to hemoglobin is much lower than that of the myoglobin and isolated hemoglobin subunit. ठीक है, तो what we find is that कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड जो आयरन है हीम की छठी पोजीशन से जुड़ जाता है और इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में जो है हाई स्पिन आयरन 2 को लोअर स्पिन आयरन 2 में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल होता है, और उसके कारण जो है आयरन 2 की जो त्रिज्या है उसमें लगभग 0.17 एंगस्ट्रम की कमी आ जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था. एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन जो है उसकी जो एक्टिव यूनिट है हीम, उसमें पोरफायरिन जो रिंग है उसमें प्लेन में उसकी कैविटी में आयरन 2 वो ही उसका कंपेटिबिलिटी साइज़ है, तो आयरन 2 आयरन फिट हो जाता है ना. तो इमिडाज़ोल के माध्यम से जुड़े ग्लोबिन समेत नीचे की तरफ खिसक जाता है. एंड नाउ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में जो आयरन 2 है एंड इमिडाज़ोल की पोजीशन आपने यहाँ देख ही रही है, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के बंधन से पूर्व इमिडाज़ोल की स्थिति को भी हमने जो है एक ब्रोकन लाइन से दिखाया गया है. तो जो चारों सब यूनिट्स के आपस में बंधित होने के कारण जो है मतलब कि आयरन का पोरफायरिन के तल में नीचे खिसक जाने का, तो शेष 3 सब यूनिट्स में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण कि इन सब यूनिट्स में हीम समूह के आयरन की जो छठी कोऑर्डिनेशन पोजीशन है ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए खुल जाती है ना. तो ये एक तरह की क्या है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक इकाई के हीम समूह से ऑक्सीजन अणु के जुड़ने से शेष बची 3 इकाइयों की भी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ जाती है, और इसी को हमने कोऑपरेटिव इंटरेक्शन का नाम दिया, सहकारिता ना. तो in the next lecture we will discuss the mechanism of transferring of oxygen through hemoglobin and myoglobin. So till then, goodbye.